Okay, so last lectures I discussed about microcontrollers. Okay, now today I am going to discuss what is a embedded system. Actually, your subject is microcontrollers and embedded system design. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि what is a microcontrollers and what is the embedded systems. How can be embedded system you can design. Okay. For knowing embedded system, first you have to come across with the systems. Can anyone tell that what is the definition of systems? Any systems? General. Any idea? Systems क्या होता है? नहीं. Systems क्या होता है? They actually basically in the system having three different parts. Okay. One is called input, another is called output, and the third one is called processing unit. If you will combine these three, okay, you can create a systems. So the meaningful system is called when you are providing the input, he will get some useful output, useful result. So that comes under the systems. So if the systems, so what is the difference between systems and embedded systems? See, systems, the size of system is big, small, larger, very larger, okay. But embedded system, when you are talking embedded system, it means that this is a small system. This is a small system. Okay. So if you are defining that embedded systems, so it is a small systems which can control the full systems. Let us consider washing machine. Washing machines में हमारे पास कंट्रोलिंग यूनिट कितनी होती है? एक छोटा से ऊपर होता है बस पैनल्स में, ठीक है. तो इस पैनल्स से हम क्या करते हैं, पूरे वॉशिंग मशीन्स के एक्टिविटीज को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम्स. सो इन द लाइफ, डे टू डे लाइफ, you can see there are many embedded systems around. I will discuss the examples of embedded systems, what type of, whatever you are seeing in the nature, which consisting electronics part, okay, that comes under the embedded systems. So now the Marlin Wolf is telling the definitions of embedded systems. Any sort of device which includes a programmable computer, but itself is not intended to be a general purpose computer. Now you have to think about that. What is the difference between computer and embedded system? Can computer system is an embedded system? The main property of embedded system is the embedded system is designed for the specific or dedicated purposes, dedicated applications. जैसे मान लो कि क्लास वॉशिंग मशीन है, ठीक है. तो वॉशिंग मशीन के लिए अगर हम एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में ही यूज होगा, ना कि हम उसको एसी में यूज कर सकते हैं. तो दैट सिस्टम इज डेडिकेटेड फॉर द वॉशिंग मशीन्स. Okay, so when you are going to design the embedded systems, this is some specific applications. It will work for some specific applications. Okay, but not a general purpose. See, कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हम कोई भी काम करा सकते हैं, ठीक है. There are lot of applications, there are lot of operations you can carry out, but with the help of embedded systems, you know you can carry out a different or fixed applications or fixed task. Okay, so this is the difference between computers and embedded system. So computer is not an embedded systems.
Okay. Now, in some book you have seen that it is written that computer is a embedded system, but computer not comes under the embedded system. Laptop, you can say that it will come under the embedded systems. So the size of computers and size of laptop is very other things. In the lab computers, what will happen? Everything has a different unit. मदरबोर्ड स्पेशल है, हार्ड डिस्क अलग है, ठीक है. लेकिन इसमें क्या है, लैपटॉप में क्या है, सारा चीज जितनी भी चीजें हैं सारा एक बोर्ड पे इनबिल्ट है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द लैपटॉप इज एन एम्बेडेड सिस्टम. Just to remember one thing, embedded system is designed for the specific task or specific applications, not a general purpose applications. Okay. In day-to-day life, you are visiting the ATM machine. So ATM machine is a good example of a embedded systems. Okay. There are so many things are embedded on that. So now you can tell that the embedded system is a computer system with a dedicated functions, not a general function. Okay, within a large mechanical or electrical systems, often with real-time computing instance. See what happens in embedded systems. Whenever he will compute the data from the nature. Okay, it means that it will work on the real time. Like you can see in the lift. Lift, what will happen? When you will press the switch, then it will go to the particular floor. So in this what happen? It will waiting for the external activities. In the ATM, what will happen? When you are touching the screen, it will go one step to another steps. Okay, so this is all about the real-time operating systems. Now, real-time system, what will happen? If you are not providing the input to the systems, it will come to the original position. Like you can see, in ATM, you can go and you can put the card. After putting the card, you will verify the PIN, and you will, if you want to withdraw the money, you can create a saving account and you can leave it. After that, it will not do any operation. You can check after fixed time slot, this steps will be goes off. ठीक है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसमें एक जो हम बता रहे थे बास्टॉप टाइमर्स होता है, वो क्या करता है कि वो देखते रहता है कि पार्टिकुलर स्टेप्स के लिए कितनी टाइम देनी है. हम क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू उसको फिक्स करते हैं कि अगर मैंने कार्ड स्लॉट डाला, ठीक है, उसके बाद अगर वेरिफिकेशन के लिए आया तो पिन डालने के बाद कितनी सेकंड्स वेट करनी है ताकि नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएं. अगर वो टाइम ड्यूरेशन ओवर हो जाएगा तो क्या होगा, ओवर होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको वो अपने आप क्या आएगा, ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाएगा. तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स. ओके, सो द नेक्स्ट इज द इट इज एम्बेडेड as part of a complete device, often including hardware and mechanical parts. See that when you are going to design any embedded system, this is a combination of hardware and software. Hardware and software. Okay, both the things are designed on the same thing. सो वेन एवर अगर कोई भी हार्डवेयर हो, कोई भी बड़ा सा डिवाइस हो, जैसे मान लो एरोप्लेन इज ए वेरी बिग ऑब्जेक्ट्स. एरोप्लेन में क्या होता है, आजकल जितने भी एरोप्लेन्स हैं सारा में ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगा होता है, ठीक है. तो फाइनेंस जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स. इसमें हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली यू कैन कंट्रोल ऑल द थिंग्स, ठीक है. मैनुअली अब 90% चीज़ें में मैनुअली चीज़ें खत्म हो जा रही हैं. So for that purpose, you have to create such type of devices. So embedded system controls many devices in common use today. Okay, now you can tell me the examples of embedded systems. Let us consider you don't know about embedded systems. You can tell me the examples in which the electronics will be used. तुम्हारे आसपास कोई भी सामान है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया गया हो. यू कैन टेल मी द एग्जांपल्स. आई विल टेल यू दिस इज अ एम्बेडेड सिस्टम और नॉट.
Can anyone tell? One by one. Ankit? Yes, sir. टेल मी द एग्जाम्पल्स. कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मुझे बताओ आसपास का, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो आसपास तुम्हारा यूज हो रहा है उसमें एग्जाम्पल्स बताओ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो. मोबाइल फोन. मोबाइल फोन. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स. ओके. श्रेया शर्मा? सर वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन. ये तो मैं बोल रहा था, कुछ अलग बताओ, डिफरेंट. सर टेलीविजन. टेलीविजन्स. ओके फाइन, इट इज एम्बेडेड सिस्टम्स. सिद्धार्थ वशिष्ठ? सर वायरलेस ईयरफोन. वायरलेस ईयरफोन. हाँ, वायरलेस ईयरफोन, इट्स फाइन, गुड. सुमन? सर वाईफाई राउटर. वाईफाई राउटर, इट्स फाइन, गुड. वंशिका? टेलीविजन. टेलीविजन तो ऑलरेडी बोल दिया, अब तो दूसरा बताओ. कोई भी जो आसपास सामान यूज हो रहा है, कोई भी चीजें हम जो यूज कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो, दैट्स इट. फ्रीजर. फ्रीजर. रेफ्रिजरेटर. ओके फाइन. या फ्रीजर्स बोथ. यस. यस वर्धन? सर डिशवॉशर, माइक्रोवेव. डिशवॉशर. हाँ, या माइक्रोवेव, फाइन. सी दैट ऑल ऑफ यू टेल, इट्स गुड. ओके. तो इतने सारे हैं जो वॉशिंग मशीन मतलब एग्जांपल्स हैं एम्बेडेड सिस्टम के. अब हम तुम्हें एग्जांपल्स बताएंगे, ढेर सारी चीज़ें जो इंक्लूडेड है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व है. कहीं भी कुछ भी हम देख सकते हैं. टीवी का रिमोट, ठीक है, क्या है, एम्बेडेड सिस्टम से. कोई भी छोटी छोटी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो, दैट्स इट. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट 2 or 3 slides, examples only. See that in the screen you can see there are some figures are there for different objects. So it is in between written that embedded system equal to computers inside a product. See computers क्या होता है, computers हम हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन embedded system हर जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है. यूज करेंगे अगर हम उसके लिए तो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए हम स्पेसिफाई करेंगे. वी कैन स्पेसिफाई द एप्लीकेशन फॉर दैट. लेट अस कंसीडर दिस इज रिमोट. रिमोट में क्या होता है, रिमोट का काम है जो भी फंक्शंस हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम्स लगा होता है. ओके. अब ये बताओ सर कार की. हाँ, कार कीज में भी होती है, बिल्कुल. अच्छा ये बताओ कार के इनसाइड कहाँ होता है एम्बेडेड सिस्टम, कौन से ऐसे फंक्शंस है जो करता है, किसी को कुछ आइडिया? कार के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट्स होता है जो एम्बेडेड सिस्टम्स है? सर डिस्प्ले स्क्रीन, कार म्यूजिक सिस्टम. डिस्प्ले स्क्रीन, इट्स फाइन. पार्किंग सिस्टम, अभी देखे वो कार में बहुत सारे पार्किंग सिस्टम आती है, ठीक है, तो पार्किंग सिस्टम में 2-3 कैमरे लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पार्क करते हैं, दैट्स ऑल्सो कम्स अंडर द एम्बेडेड सिस्टम. नाउ द बेस्ट इज एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम्स. एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम तुमको पता है, एबीएस. यस सर. एक एयर बैग्स होती है. एयर बैग्स भी काम कैसे करता है, वो एम्बेडेड सिस्टम पे ही काम करता है. एक्चुअली करता क्या है, वो वेट करता है किसी हिट का. अगर कार के ऊपर कोई भी हिट आएगा तो एयरबैग क्या होता है, खुल जाता है. इसका मतलब क्या है, कोई तो वहाँ बैठा हुआ है जो कि देख रहा है कि कोई हिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्रेशर कितना पड़ रहा है, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ में लगा होता है. अभी देखो मेट्रो में आप लोगों को पता ही है, सारा चीज़ ऑटोमेटिक है, सारा एम्बेडेड सिस्टम से कंट्रोल होता है. जितने भी उसके गेट्स हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं, सारे में एम्बेडेड सिस्टम लगा होता है, ठीक है. लिफ्ट में भी होता है, जब हम प्रेस करते हैं 1 चला जाता है, 2 प्रेस करते हैं 2 चला जाता है, इट्स फाइन. ओके. अब देखो सब मैरिन में भी हम यूज करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट में भी यूज करते हैं. तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. हर एप्लीकेशंस के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन करते हैं. तो यू हैव अ मोटो टू डिजाइन सिस्टम्स.
तुम भी एक सिस्टम ऐसा डिजाइन कर सकते हो जो किसी भी काम के लिए एप्लीकेबल हो। एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग यू हैव टू थिंक। देखो, दो चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है तुम्हारा टाइम कंस्टेंट। हम क्या बोलते हैं, दो तरह के सिस्टम डिजाइन करते हैं। एक ये सिस्टम होता है कि अगर टाइम 2-4 मिनट 2-4 सेकंड 10 सेकंड बाद भी अगर वो आउटपुट देता है तो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको तुरंत काम करना होता है। जैसे मान लो एयरबैग्स में, अगर एयरबैग्स में हिट आया उसके बाद अगर 2-3 मिनट वेट करने लगे तो फिर क्या होगा, देयर इज नो यूज। तो जहाँ पे टाइम कंस्टेंट है, जैसे एरोप्लेन, ठीक है, तो जहाँ पे टाइम कंस्टेंट है वहाँ पे हम कॉस्ट की बात नहीं करेंगे। यू कैन मतलब कितना भी महंगा तो प्रोडक्ट बना दो, इट्स फाइन। लेकिन जहाँ टाइम कंस्टेंट नहीं है कि चलो 1 मिनट बाद आउटपुट आए इट्स फाइन, 2 मिनट बाद आउटपुट आए इट्स फाइन। जैसे क्या होता है आजकल बहुत सारे खिलौने आते हैं, टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, उसमें क्या होता है, देयर इज नो टाइम कंस्टेंट। तो क्या होता है 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये में भी इलेक्ट्रॉनिक टॉयज मिल जाते हैं, ठीक है। दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन द सिस्टम्स। ओके, now you can see the examples, whether varieties of examples are available. You can see anti-lock brakes, anti-lock braking system, that is called ABS. Okay, autofocus cameras. Now I think all of you are using with the help of mobile. चलो मान लो कि तुम अकेले हो और तुम्हें फोटो लेना है, मान लो कि उसमें सेल्फी फीचर अवेलेबल ना हो, ठीक है। इवन सेल्फी में भी अब क्या होता है, अब टाइम्स आते हैं, टाइम स्लॉट्स आते हैं कि चलो भाई हमने टाइमर ऑन कर दिया तो 5 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद 1 मिनट बाद वो क्या करेगा, अपने आप कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है ऑटो फोकस कैमरास। ऑटोमेटिक टॉल सिस्टम्स, अब आप लोग को सबको पता है फास्टैग इज इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द व्हीकल्स, ठीक है। तो उस विद द हेल्प ऑफ फास्टैग क्या करते हैं, हमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप वो कट जाता है, अपने आप नंबर प्लेट्स रीड करता है, ठीक है, उसके बाद काम खत्म। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एवियोनिक सिस्टम्स, देखो जितने भी एरोप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, अब जो चलती हैं वो मैनुअल नहीं चलती, ठीक है, ये सारा ऑटोमेटिक हो गया है। होता क्या है, तो फिर बोलोगे ड्राइवर करता क्या है, जब पूरी सिस्टम्स ऑटोमेटिक है तो फिर बताओ कि पायलट, व्हाट इज द यूज ऑफ पायलट, टेल मी, किसी को कुछ आइडिया है? सर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कभी सिस्टम काम ना करे। ओके, ठीक है, फाइन। और एनी रीजंस? दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड वन? अभी कुछ महीने पहले सर पायलट कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल्स, सर सिस्टम when to do what, because everything is automatic, but yeah, you pilot, can say, but the system is fully automatic, so pilot will not control anything. सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए पायलट चाहिए। सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए पायलट चाहिए, ओके फाइन, गुड। दूसरा और है, हम जब भी रनवे पे जाते हैं तो रनवे से जाने के लिए जहाँ पे मतलब एयरक्राफ्ट लगी होती है वहाँ से सेट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअल चलानी पड़ती है, ठीक है। तो वो उसको चलाने के लिए ऑटोमेटिक्स वो यूज नहीं होता, ठीक है। दूसरा है कि जब हम लैंडिंग और टेक ऑफ के समय में पायलट का थोड़ा यूज़ है। जैसे ही पायलट टेक ऑफ कर लेता है तो टेक ऑफ करने के बाद क्या करता है, एक कांस्टेंट, हर एक कंपनीज की एक कांस्टेंट हाइट फिक्स होती है कि आपको 25,000 फीट पे चलनी है, आपको 20,000 फीट पे चलनी है, ठीक है। तो वो अपने उस फीट पे जाके वो क्या कर देता है, सेट कर देता है। अब सेट कर देता है अकॉर्डिंग टू जीपीएस, ठीक है, वो अपने आप पाथ फॉलो करता है, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो ये सब एडवांसमेंट है मेरे सिस्टम का। सेलफोन्स पता ही है, ठीक है, सेलफोन बेस स्टेशंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बीटीएस। जहाँ भी टावर होता है, टावर के नीचे एक बॉक्स लगा होता है, आई थिंक ऑल ऑफ यू सीन दैट बॉक्स, ठीक है, दैट बॉक्स इज कॉल्ड बीटीएस। इसमें भी यूज होता है कोडलेस फोन, डिजिटल कैमरास, डिस्क ड्राइव्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर्स,
electronic toys or games, fax machine. Fax machines, any have seen the fax machine? Fax machine किसी ने देखा? What is the use of fax machine? What is the use of fax machine? No, किसी को पता नहीं है? Sir, from a far distance, we can send prints on fax machine. Any distance, not a short distance, any distance. जैसे फोन काम, लैंडलाइन फोन काम करती है, ठीक है, सेम तरीके से फैक्स मशीन होता था। पहले क्या था? पहले ईमेल नहीं था हमारे पास। जब ईमेल नहीं था तो डेटा हम कैसे सेंड करते हैं? या तो पोस्ट ऑफिस से या कुरियर से। यू हैव 2 ऑप्शंस ओनली। लेकिन अगर मान लो कि वी नीड अर्जेंटली, व्हाट यू विल डू? विद द हेल्प ऑफ फोन्स यू कैन डू अ फैक्स। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम एक तरह से हम पेपर लगाते थे, ठीक है, जैसे स्कैनिंग होती है, सॉरी स्कैनिंग नहीं, जो प्लास्टिक नहीं लगाते हैं का उस पर, हाँ नहीं फोटोकॉपी नहीं है, क्या बोलते हैं, लेमिनेशन, सॉरी लेमिनेशन। जैसे लेमिनेशन होती है उसमें हम डालते हैं और वो राउंड होता है और वो चला जाता है। होता क्या था, इसमें भी ऐसे होता था। मैंने पहले फ़ोन लगाया, ठीक है, वहाँ रिंग होता था, सामने वाला क्या करेगा, उठाएगा, उठाने के बाद बोलेगा यहाँ से बोल रहा है फैक्स करनी है, तो क्या करेगा, जैसे ही फैक्स मशीन में डालेगा जितना पार्ट इधर जाएगा उतने पार्ट वहाँ से प्रिंट होकर निकलती थी, ठीक है। तो ये एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द फुल्ली कंसेप्ट ऑफ लैंडलाइन फोन्स, ओके। आफ्टर अब जब ईमेल आया तो इसी को ज़रूरत ही नहीं है, अब तुम कहीं देखोगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा फिंगरप्रिंट आइडेंटिफायर्स, आधार कार्ड, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट फिंगरप्रिंट आइडेंटिफायर्स, ओके। होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, बहुत सारे होम में कुछ सिस्टम्स लगे होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक डोर कंट्रोल, ठीक है, ऑटोमेटिक लाइट ऑफ ऑन, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मेरा घर अगर बिहार है, एज एग्जाम्पल्स, और हम चाहते हैं कि अपने घर की देखभाल मैं खुद करूँ यहाँ से रह के, यू कैन डू दैट। एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ओके। So this is the examples. Now you can see the next example is modems. सबको पता है, नेटवर्क स्विचेज और राउटर्स, फोटोकॉपियर्स, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स। किसी को आइडिया है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज POS मशीन। देखा है किसी ने POS मशीन? इन एवरी शॉप इट इज अवेलेबल, जिसपे हम कार्ड स्क्रैच करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स इसको बोलते हैं POS मशीन। 90% लोगों को पता है POS मशीन होता क्या है, लेकिन ये पता नहीं होता POS का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर दैट। नेक्स्ट इज पोर्टेबल गेम्स, वीडियो गेम्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, स्मार्ट ओवन्स एंड डिशवॉशर्स, टेलीविजन्स, थेफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स, ठीक है, टीवी सेटअप बॉक्सेज, DVD प्लेयर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल टेस्टिंग सिस्टम। सो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पता है किसी को? एनीवन नोज लाइफ सपोर्ट सिस्टम? Ventilators. Ventilators is like that, yeah, you can tell. मेडिकल टेस्टिंग सिस्टम्स, ठीक है। पहले क्या होता था, जब हम कोई भी टेस्ट करते थे, मेडिकल टेस्ट, ठीक है, तो इट विल टेक मोर टाइम। कभी देखो कि रिपोर्ट आ रहा है 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद। अब क्या है, अभी टेस्ट कराया 2 मिनट में चल गई, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बड़े सिस्टम्स बनाया गया है जो मेडिकल्स के लिए यूज होता है, लाइक पेशेंट मॉनिटर। पेशेंट मॉनिटर, एनीवन कैन सी दैट पेशेंट मॉनिटर? अगर हॉस्पिटल में तुम जाओगे, ठीक है, तो ठीक है, क्रिटिकल कंडीशंस में क्या होता है कि पेशेंट मॉनिटर्स में ही वो रखता है पेशेंट को। यू कैन टेल दैट ICU। ICU में क्या होता है? एनीवन हैव एनी आइडिया?
आईसीयू के अंदर क्या होता है? व्हाट हैपेंस इनसाइड द आईसीयू? सर पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, तो कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे वो पता है सीटी स्कैन या एमआरआई करते हैं तो राउंड बॉक्स होता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, यस सर। ठीक है? तो सेम तरीके का चीज़ होता है। अगर मान लो कि पेशेंट का हमें कुछ भी चीज़ें चेक करनी है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर उसको डाल देते हैं। उसमें इतने सारे पेशेंट मॉनिटर में इतने सारे सिस्टम्स लगे होते हैं, सारा सिस्टम्स क्या करता है, दैट सिस्टम विल बी क्लोजली मॉनिटर ऑल द थिंग्स। और हम क्या करते हैं, उसको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन पे देख के रिजल्ट निकालते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करते हैं, ओके? So this is the examples of all things, same things whatever I discussed, just I put it on that, okay? This robot is also examples for the embedded systems, and any new things I know, telephones is there, mobiles is there, cameras is there, laptops, okay, it's fine, okay? See that here I have fitted the computer systems. But in some book, you don't see that computer system is a embedded systems. Okay, but you can tell that monitor is embedded systems, keyboard is embedded systems itself. Okay, but combining we can't tell that in combining. Okay, so now tell me that if you have any doubt, you can ask